Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So, welcome to a brand new attempt at me teaching you something different. So, what's that different that you are going to learn from me today? Well, it's एक श्रृंखला का, एक सीरीज की शुरुआत है जहाँ पे this particular subject, which is organization of commerce and management, is what I will be trying to teach you. If there are concepts जो थोड़े difficult है understand करने में, fortunately इतने नहीं हैं, but जितने भी है I will give my 2 cents. Okay, by that what do I mean? मेरी जो थिंकिंग है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा. Today's basic plan is to give you an overview, a helicopter view. Mr. Dhoni is famous ना for that helicopter shot. तो उसी तरह मैं एक helicopter view आपको देता हूँ. एयरप्लेन व्यू नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि if you are in an airplane कुछ दिखता नहीं है नीचे, बट हेलीकॉप्टर से नज़र आ जाता है. ओके, a helicopter view कि in this particular subject during my entire year of 12th standard, what is it that I'm going to be learning? Okay, so your index has 8 chapters. By the end of the lecture, I will also tell you, because now many students always, कितनी भी मेहनत कर लो टीच करने में, बच्चा हमेशा आके यही पूछता है, इनफैक्ट शुरुआत में ही पूछता है, क्या सर वो ऑप्शन में क्या आएगा, सर वो ऑप्शन में क्या मैं छोड़ सकता हूँ, सर वो कौन सा चैप्टर के लिए कम मार्क्स से कम वेटेज है. ओके, उनके लिए भी आंसर एट द एंड मार्किंग पैटर्न जो होता है मैंने दिखा दिया है, जो बोर्ड ऑफिशियली यूज़ करता है और डिक्लेयर कर चुका है. ओके, सो इंडेक्स में क्या क्या है? वेल, अंग्रेजी में लिखा गया है, पढ़ लेते हैं हम सभी. सो यूल स्टार्ट विद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, गो ऑन टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्वियसली ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. सो मेनी ऑफ यू वुड बी, मैनेजमेंट सुना तो बहुत है, बट मतलब टेक्निकली होता क्या है? वेल, चीज़ों को संभालना मैनेजमेंट होता है, लोगों को संभालना मैनेजमेंट होता है, फंक्शंस को परफॉर्म करना मैनेजमेंट होता है. सो इट्स अ बिग टर्म, ये बहुत बड़ी अलग से सब्जेक्ट है जो आप आगे जाके सीख भी सकते हो. यू कैन लर्न इट एज इन व्हेन यू गो अहेड इन योर एजुकेशनल लाइफ, बट एट लीस्ट राइट नाउ तो इंट्रोडक्शन तो हो ही जाएगा आपका. प्रिंसिपल्स, फंक्शंस, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इस पे चर्चा मैं थोड़ी करूँगा एज एंड व्हेन वी गो अहेड. बिजनेस सर्विसेज, इनफैक्ट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चौथा चैप्टर आपका. एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, सोशल जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़,
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड लास्ट का मार्केटिंग के साथ में खत्म करेगी. कौन कितना इंपॉर्टेंट है क्लियरली इन द मार्क्स दैट दे आर एलोकेटेड. I will put it up on the screen right now. If we talk about a little bit details, okay, what am I going to learn when I do that principles of management? Okay, two people, one called as the father of modern management, one called as the father of scientific management. इनके जो theories है thinking, okay, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. Okay, so basically there is a gentleman by the name of Henry Fayol. देर इज़ फ्रेडरिक टेलर. ओके, ये कौन है? ओके सर, आप वो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स आते हैं, वो इंग्लैंड के क्रिकेटर्स आते हैं, उनकी बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं. ओके, तो इन्हें ओके इनके चले जाके काफ़ी टाइम हो चुका है, बट द कॉन्सेप्ट्स, द थिंकिंग, द थियरीज जो इन्होंने पुटअप किए थे वो आज भी यूज़फुल होते हैं. येस, उसमें काफ़ी अपग्रेडेशन हो चुका है, उसमें काफ़ी वर्जन्स चेंज हो चुके हैं, बट द बिगिनिंग ऑफ मैनेजमेंट was explained by these people. I'll come to that in some time. Functions of management में मतलब जब मैनेजमेंट की प्रोसेस को किया जाता है, so what is to be done in that, in entrepreneurship development. Fine. उसके अंदर उस वर्ड पे भी हम लोग चर्चा करेंगे. ओके, what is expected to be done from you? Business services, which is one of the most important subjects. सब्जेक्ट्स नहीं, इस सब्जेक्ट में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको क्या क्या करना पड़ेगा. एमर्जिंग मोड्स, मॉडर्न मोड्स ऑफ बिजनेस. कि बिजनेस एक ज़माने में, किस ज़माने में? पुराने ज़माने में एक दुकान होता था, एक दुकानदार होता था और उसके आसपास में लोकल एरिया में वो काम करता था. नॉट नेसेसरी विद एन Amazon एंड अ Flipkart योर शॉप कैन बी इन वन गली ऑफ इंडिया एंड यू कैन हैव योर कस्टमर इन अ वेरी एक्सट्रीम एंड ऑफ इंडिया. मतलब कश्मीर में आपकी दुकान है, कन्याकुमारी में आपका कस्टमर होता है, एंड आपका प्रोडक्ट एक दो दिन में उस कस्टमर तक पहुंच सकता है, विच इज़ अमेजिंग. इट्स अ मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट. देन बिजनेस तो है, बिजनेस कैसे भी करोगे? नहीं, कुछ जिम्मेदारियां आपकी बनती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन. एवरीथिंग दैट इज डन इन बिजनेस इज डायरेक्टेड, द फोकस इज ऑन होम? कंज्यूमर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? इफ देर इज नो कंज्यूमर, तो उसके पहले जो कर रहे हो ना, मैनेजमेंट कर रहे हो, उसकी प्लानिंग कर रहे हो, आप जो भी मॉडर्न बिजनेस कर रहे हो, वो सब बंद करना पड़ेगा. वो है कंज्यूमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हिज राइट्स, जिम्मेदारियां, उसको बचाया जाना चाहिए. तो उसके लिए क्या किया गया है इन द कंट्री ऑफ इंडिया. एंड लास्टली मार्केटिंग किस तरह की जाती है. दीज आर जस्ट इंट्रोडक्शंस. मैनेजमेंट में पढ़ाई यू कैन डू इन अ लॉट मोर डिटेल. मार्केटिंग में पढ़ाई, MBA you can do in a lot more detail. Everything that is being shown to you in the next few minutes आप in detail कर सकते हो as and when आपकी पढ़ाई का स्तर लेवल बढ़ जाएगा. So अब थोड़े पिक्चर्स में बात कर लेते हैं. योर चैप्टर नंबर 1 विल, विच इज राइट अबाउट मी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो ये दोनों प्रिंसिपल्स नहीं है, और प्रिंसिपल्स का मतलब आपके कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं है. ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस कि मैनेजमेंट में कौन से रूल्स, कौन से रेगुलेशंस हमको फॉलो करने चाहिए. अबाउ इज हेनरी फेयोल. ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ व्हाट यू कॉल मॉडर्न मैनेजमेंट. ओके, ये जो जी हमारे पीछे है फ्रेडरिक टेलर. ओके, ये साइंटिफिक, यहाँ पे लिखा गया है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो व्हाट वाज देयर थिंकिंग. ओके, उनके हिसाब से मैनेजमेंट किस तरह होनी चाहिए. एंड दे हैव मेड, इफ यू कैन नोटिस ऑब्वियसली, द बर्थ एंड द जन्म का दिन और मृत्यु का दिन, वो तो मतलब ज़माना हो चुका है. ओके, 1800s 1900s, सेम थिंग हियर, 1800s 1900s. बट एक सेंचुरी पहले जो इन्होंने पढ़ाई की थी, ओके, और जो इन्होंने कॉन्सेप्ट पेश किया था, प्रेजेंट किया था, वो आज भी थोड़े थोड़े रेलेवेंट कैसे है, इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन चैप्टर नंबर 1. दैट इज गोइंग टू बी द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड इन डिटेल लर्न द थियरम और the thesis, okay, or the thinking of Henry Fayol and Frederick Taylor. Okay, there are many more management gurus, especially in the modern age. Okay, YouTube पे आपको बहुत गुरुज मिल जाएंगे.
बट जो आया गया उनकी बात नहीं करेंगे, जो जिनके थियरीज इतने सालों से पढ़ाए जा रहे हैं, इज व्हाट वी विल बी स्टार्टिंग विद. द सेकेंड चैप्टर इज गोइंग टू डील विद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. सो इन मैनेजमेंट आपको क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करना पड़ता है. द वेरी फर्स्ट थिंग, प्लान क्या करूँ? वेरी सिंपल. अगर आपको एक जगह पर वैक्सीनेशन स्टार्ट करना है, ओके, तो कैन यू जस्ट चलो स्टार्ट करते? अरे नहीं, you have to make sure that all the permissions are obtained from the police department. आप वैक्सीनेशन का अनाउंसमेंट करोगे, बाहर 500 लोग का लाइन लग जाएगा. किस बात की सोशल डिस्टेंसिंग होगी? नो. स्टार्ट करोगे, पब्लिक देखेगी, पुलिस आके बंद करा देगी. हो ही नहीं हो पाएगा. प्लान करो. ओके, कितने लोग काम करेंगे वहाँ पे बेड है कि नहीं, लोगों को बिठाना है, वहाँ पे पानी की सुविधा है कि नहीं, समथिंग लाइक दैट. ओके, so I repeat myself, the planning has to be done. Then organizing, staffing, directing, controlling, and many more. I just give you an example. To make up a school as a vaccination center, all of these have to be done. In a corporate environment, in a company, ये तो काफ़ी बड़े level पे किया जाना चाहिए. Okay, so we will be doing that in our second chapter. Third one, सबसे important बात क्या? देखो चैप्टर में क्या है वो बाद में. द फर्स्ट थिंग इज, यार वो वर्ड ही इतना डिफिकल्ट है, एंट्रीप्रेन्योर. ओके, मतलब थोड़ी खोज तो हमको भी करनी पड़ी. ओके, सो इट गोज विथ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस. इट्स अ वर्ड विच इज बिल्ट अप एंड इट हैज़ इट्स पास्ट टेंस इन द फ्रेंच लैंग्वेज, जो सिंपल तो है नहीं वैसे भी. ओके, सो यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने, ओके, गूगल माता का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हम भी यूज़ करते हैं. ओके, सो एंट्रेप्रेन्योर ई से है, बट उसको ए का जोर लगाया जाता है. ओके, बाकी आपका प्रोनाउंसिएशन आपको जैसे करना है, वर्ड याद रखना और स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए. ओके, नाउ अबाउट सेज एंट्रेप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. नाउ व्हाट इज दिस एंट्रेप्रेन्योर? ये मतलब ये बंदा होता कौन है? ओके, ये बंदी होती कौन है? वेल, आप थोड़ा यहाँ पे नज़र मारो. ओके, अ स्मॉल बिजनेसमैन हैज़ फाउंडेड अ नेबरहुड ग्रोसरी. आपके गली में किसी ने दुकान स्टार्ट किया है, उसको आप एंट्रेप्रेन्योर बोल सकते हो. नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ अ स्टार्टअप लॉन्ड्री. लॉन्ड्री की सेवा, कपड़ा धोना, आयरन करना, प्रेस करना. The founder of a multi-million Reliance company, Mr. Ambani. Okay, a freelancing plumber. So I repeat, those people who have got shops or who provide services besides you, plumber, electrician, all of them are entrepreneurs. All of them. Okay, don't say so entrepreneur मतलब सब बड़े बड़े लोग ही, अजीम प्रेमजी, Mr. रतन टाटा. नहीं, nothing like that. Okay, please read them. Entrepreneurship. The person is the entrepreneur. But the what he's doing is entrepreneurship. Means क्या? The willingness of an individual to start a new business venture by taking risk and managing in this technology, okay, enabled competitive global world. एक ऐसा बंदा जो कुछ नया स्टार्ट करता है, एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है. And when you start a business, you can't for sure say it will be successful, but you take the risk. That person becomes an entrepreneur. Okay, so I repeat myself, अगर एक बिजनेस चल रहा है और वही सेम बिजनेस आप कॉपी कैट स्टार्ट करते हो, यू आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क. ओके, सो आई रिपीट माई सेल्फ, वेन यू स्टार्ट एंड you do something different or you do it differently, two different things. Okay, you are taking a risk. Okay, तो ये कहते हैं ना हिंदी में. ओके, हिंदी की भाषा में क्या? जिगरा होना चाहिए. हाँ भाई, इसके लिए जिगरा होना चाहिए. बाकी what is the situation of entrepreneurs in India? क्योंकि you just can't be someone in a country के to be entrepreneur. तो अरे तुम्हारे को एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए. Does the government support you in your new ideas? जब तक नए चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, how will new things develop? There has to be social backing, there has to be political backing, support होना चाहिए. Okay, so in this chapter we will learn that the good, the bad and the present situation with this thing called as entrepreneur and entrepreneurship. Okay,
बाकी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन इसमें 19-20 है तो प्लीज़ क्षमा चाहता हूँ. I'll try to improve upon it the next time also. So, after this, very super important chapter. Okay, मतलब somebody would say when you're eating, है ना, तुम्हारे लिए is the calcium and the carbohydrates and the protein, ये सबसे ज़्यादा बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? उसी तरह ओसी के बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इज बिजनेस सर्विसेज. इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर्स एंड द रीजन इज many of you may in future want to make your career in banking, in insurance, in transportation, very importantly communication. So banking sector क्या होता है, किस तरीके के बैंक्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, everything will be explained to you. In today's digital world, जहाँ पे आप 10 रुपए का पेमेंट 11 रुपए का पेमेंट भी मोबाइल निकाल कर करते हो, गूगल पे से, फोन पे से, ऑल ऑफ दैट इज कनेक्टेड टू योर बैंकिंग अकाउंट, विच इज वेरी गुड. हाँ, तो हाउ इज दिस डन? द डेबिट कार्ड, द क्रेडिट कार्ड, एवरीथिंग विल बी थॉट टू यू इन बैंकिंग. इंश्योरेंस, एवरीथिंग नाउअडेज इज इंश्योर्ड. एक साइक्लोन होके चला गया, झाड़ गिर गए, कितनों के घर के ऊपर, कितनों की गाड़ियों के ऊपर. द गाड़ी वाला बोल रहा है मेरे को टेंशन नहीं है, मैंने तो इंश्योरेंस करवाया है. हाँ, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस कौन से टाइप्स का होता है. जनरल इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, मोटर कार इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द प्रीमियर एंड बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया. इतने बड़े हैं कि सरकारों को लोन देते हैं, सरकारों को लोन देते हैं. सोच सकते हो पैसा कितना है उनके पास में. हाँ, क्या बिजनेस करते हैं, इंश्योरेंस के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा. ट्रांसपोर्टेशन, क्यों नाउअडेज, अरे वो मैं अमेजोन पे गया और मेरे को कुछ चाहिए था, रात के 12 बजे मैंने ऑर्डर किया, उन्होंने बोला कल आ जाएगा, पर मैं तो मेरे पूरे लोकल एरिया में मैंने 50 दुकान देख लिए, ये प्रोडक्ट था ही नहीं. इन लोग कहाँ से उठा के लेके आने वाले हैं. लॉजिस्टिक्स, Amazon, Flipkart is excellent at that. When they say कल 9 बजे तक डिलीवरी हो जाएगी, 99.99% 9 बजे को डिलीवरी उसके पहले हो जाएगी. They have figured out कि आपका प्रोडक्ट जैसे ही आप बुक करते हो, कैसे निकलना चाहिए, कब पैक होना चाहिए, किसके हाथ में देना चाहिए, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, प्लेनवेज, मतलब that's not the correct word, but transportation. Okay. एंड टुडे एवरीबडी फेसबुक कर क्या रहा है, कम्युनिकेशन एनकरेज कर रहा है. व्हाट्सएप कमा क्यों रहा है, कम्युनिकेशन एनकरेज कर रहा है. ऑल ऑफ अस, यू मी, हमको ना बात करना बहुत पसंद है. ओके, घंटों बात करना है हमको मोबाइल पे चैटिंग करके. सो ऑल ऑफ दीज कंपनीज जो हमारे रग रग में बसा हुआ है, कम्युनिकेशन, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, ओके, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, and a lot more things. So what are the different modes of communication? What were the old modes of communication? Postal system, आजकल वो भी है, but because of the development in technology, okay, it's an email, it's a social media account, etc, etc. The most important chapter, business services. Next, emerging modes, modern business. See, business is no longer 4 दीवार में एक दुकान, नहीं, it's digital. It has an online presence. उसका एक वेबसाइट है, वहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं. मतलब you do not have to worry. पहले था बिजनेसमैन के पास अगर एक दिन में 2 लाख 3 लाख रुपया आया, he had to keep it, he had to wait till the next day. बैंक कब खुलेगा, he had to say कल सबसे पहले दुकान नहीं, बैंक भागना है पैसे लेकर. बट आजकल ऐसा नहीं है. You don't have to have a तिजोरी. Okay, everything is digital. So I repeat, digital transaction होता है, आपका दुकान डिजिटल है. So I repeat, what is e-business? Okay, and उस पे ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे होता है, and very importantly, ये आउटसोर्सिंग क्या होता है. In a business, to run a shop, there are multiple, what do you call, functions. One function is staffing. One function. There are many. Manufacturing is another function. एक होता है स्टाफिंग. स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, हाँ, मुझे 10 लोग चाहिए काम करने के लिए, बट अगर मैं इंटरव्यू करने बैठूँ तो 500 लोग आने वाले हैं.
Now, out of 500 people, how do I come to a conclusion that the 10 people that I want, जो मेरे साथ एक टीम के जैसे काम करेंगे, वो कौन है? मेरे को इतना दिन 500 लोग का इंटरव्यू करने जाऊं मैं? ओके, नहीं, आउटसोर्स कर दो. आउटसोर्स मतलब देर आर स्पेसिफिक दुकान, इंस्टीट्यूशंस, बिजनेसेस जो आपके लिए हायरिंग का जॉब करेंगे. दे विल डू ऑल द इंटरव्यू प्रोसीजर एंड उसमें से 500 में से दे विल गिव यू 50. ये विल से बाकी का 450 भूल जाओ, उन लोग आपके काम के नहीं थे, उन लोग ऐसे ही आए थे एसी का हवा खाने के लिए. हाँ, सो 50 में से, चलो बहुत टाइम बच गया, एक दिन में तो 50 लोग का इंटरव्यू में कर देता हूँ. सो आउटसोर्सिंग जो आपका बर्डन, आपका टेंशन थोड़ा कम कर देगा. प्रोडक्शन वो इन अ जमाना, एक जमाने में ऐसा क्यों है कि a vaccine which is COVID shield, okay, which is developed by AstraZeneca, that's a UK based pharmacy, a pharma company, okay, but वो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया, महाराष्ट्र एंड पुणे के SII, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को देती है. यूके में आपने रिसर्च किया है तो उधर ही बना लो. वो लोग बोलते हैं नहीं, हमारा टाइम हम देते हैं रिसर्च करने में. प्रोडक्शन करने का भी काम अगर हम करें, इट इज़ नॉट सिंपल टू मेक वन वैक्सीन. उसके अंदर जो मसाला है वो अलग है, बट उसके बाहर का जो ग्लास कवरिंग है, उसके ऊपर का जो ढांचा कवरिंग है, द एल्यूमिनियम कवरिंग, द रबर मैकेनिज्म, ऑल ऑफ दैट, उसके लिए रॉ मटेरियल लगता है. मैन्युफैक्चरिंग इज अ डिफरेंट हेडेक. Research and development is a different thing. So AstraZeneca is like, we will concentrate on research and development. हमने मैन्युफैक्चरिंग का काम आउटसोर्स करा दिया है. SII in India is going to be making good. आप एक काम पे ध्यान दो, वो एक काम पे ध्यान देगी. आउटसोर्सिंग, we will learn that. Then आगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बाबा आप कुछ भी करो, whatever you do, if you become a big film actor, you have social responsibilities. If you are a sports personality, you have social responsibilities. If you are a famous YouTuber, you have social responsibilities. If you are a famous politician, you have social responsibilities. Why? People follow you. People look up to you. You have to make sure, if you are an Olympic medalist, Bharat Ratna, okay, you have social responsibilities. Similarly, a company, a business has social responsibilities. In fact, ऐसे कानून बनाए गए हैं कंपनीज एक्ट में जहां पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो कंपनीज को पहले ऑप्शन था, इफ दे अर्न 100 रुपीज, 2 रुपया से वो गरीबों की मदद करे, पढ़ाई में हेल्प करे, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे, दे डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. बट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ कानून मेड, सेक्शन है उसका, कानून लिखा गया है कि अगर आपका नेट प्रॉफिट इतना है, अगर आपका टर्नओवर इतना है, ओके, तो यू हैव टू कंपल्सरीली, कंपनीज को, बड़े बड़े कंपनीज को ये कंपल्सरीली कहा गया है, यू हैव टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ योर प्रॉफिट स्पेंड ऑन द सोसाइटी, द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. ओके, हाँ सरकार अपना काम भी करेगी, बट इफ़ यू ऑल्सो डू दैट, अगर आपने एक विलेज को अडॉप्ट कर लिया, अगर आपने उस विलेज के लोगों को एडुकेट कर लिया, यंग जनरेशन को एडुकेट कर लिया, अगर आपने एक पार्क को अडॉप्ट कर लिया, अगर आपने वो पार्क को बढ़िया बना दिया कि पीपल कैन गो फॉर अ वॉक, जॉग, एक्सरसाइज, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स where betterment can be done. Corporates, companies can be useful in that. And the last thing that you learn in this chapter is business ethics. What do you mean by business ethics? देखो, ethics का मतलब है how do you present yourself in front of the public. Okay? ईमानदारी है कि नहीं है? If a businessman says, ईमानदारी का पता नहीं, मैं तो मुनाफा कमाता हूँ, मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी करके मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, दैट्स नॉट द राइट वे. मतलब आप सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल यूज़ करोगे, मतलब आप चोरी का चीज़ यूज़ करोगे, मतलब आप दूसरे की इंफॉर्मेशन गलत सलत तरीके से ऑब्टेन करोगे ताकि आपका बिजनेस बढ़ सके, दैट्स नॉट एथिकल.
शॉर्ट टर्म में हो जाएगा आपका काम, लॉन्ग टर्म में नाम जब खराब होगा धंधा बंद हो जाएगा। हाँ, सो एथिक्स, ईमानदारी है कि नहीं आप में, ओके, एंड मेनी मोर थिंग्स वी विल लर्न लेटर ऑन इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बिकॉज आई सेड एट द बिगिनिंग, बिजनेस जो करता है, जो सोचता है, जिस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, इट्स डायरेक्टेड टू द कंज्यूमर, बिकॉज इफ देयर इज नो कंज्यूमर, एक मार्केट के अंदर अगर सिर्फ दुकानदारों ने अपना दुकान लगा लिया, ओके, मैंने आज एक आर्टिकल पढ़ा, ओके, न्यूज़पेपर में, फर्स्ट पेज पे था, डोनाल्ड ट्रंप ने, जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, ओके, करीबन कुछ महीनों पहले, ओके, ने एक वेबसाइट स्टार्ट किया था, और उस वेबसाइट पे वो अपने, जैसे ट्विटर पे डालते थे ना, ओके, थॉट्स, तो उन्होंने वेबसाइट पे डालना स्टार्ट किया। 1 महीना चला और फिर बंद हो गया, वेबसाइट खुद बंद करा दिया। क्यों? क्योंकि कोई पढ़ने के लिए ही नहीं आता, ओके, देयर आर नो विजिटर्स टू द वेबसाइट, बंद करा दिया। अरे, ही वॉज द प्रेसिडेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वेरी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, अ डेवलप्ड कंट्री, कोई नहीं आता पढ़ने के लिए, उसको दुकान ही बंद करना पड़ा, कंज्यूमर नहीं है। हाँ, तो समथिंग लाइक दैट कि बाबा, एवरीथिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कंज्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक मार्केटिंग की भाषा में कहा जाता है ना, कंज्यूमर इज किंग, वेरी इंपॉर्टेंट। बट देन देयर आर बिजनेसेस, देयर आर बिजनेसमैन जो कंज्यूमर को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो कंज्यूमर को सबस्टैंडर्ड माल बेचते हैं। तो व्हाट कैन अ कंज्यूमर डू? ओके, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ कि 15,000 का मोबाइल ऑर्डर किया और घर पे आता है पत्थर। मैंने ये वाला प्रोडक्ट ऑर्डर किया, घर पे आता है डिफेक्टिव। व्हाट कैन आई डू? आई हैव पेड मनी फॉर इट। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट्स अ कंज्यूमर, उसकी क्या राइट्स है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, और जब उसके साथ में किस तरह की चीटिंग की जाती है। ओके, सो देयर इज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ जागो, ग्राहक जागो, ग्राहक हम हैं। ओके, देर आर कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई ग्राहक पंचायत, अबाउट द रिसर्च सेंटर, एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। ओके, कि भाई कंज्यूमर को हमको क्या ज्ञान देना चाहिए, कि भाई उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, ओके, उनके क्या हक होते हैं, वो कैसे अपने आवाज़ को उठा सकते हैं अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ में किसी भी तरह की चीटिंग करे। वी विल लर्न इट इन दिस चैप्टर के सेटअप क्या है इन द कंट्री ऑफ इंडिया स्पेशली, ओके, फॉर द फाइट ऑफ कंज्यूमर्स। एंड लास्टली वी विल कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, बिकॉज यू सी, एक दूर के इलाके में, एक खेत में एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, बट वो दूर के इलाके में, उस खेत में हम नहीं जाने वाले, तो वो हमारे तक कैसे पहुंचता है? दैट्स मार्केटिंग। हाउ डू यू मार्केट इट? ओके, हाँ, सो इन मार्केटिंग हमारे लिए व्हाट डज अ मार्केट मीन? वो जो भाजी का मार्केट है, वो जो कपड़े का मार्केट है, नहीं, इट्स अ बिगर कॉन्सेप्ट, इट इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट। एंड इन मार्केटिंग 7 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट क्या है, कहाँ पर बेचा जाएगा, किस भाव में बेचा जाएगा, उसका प्रमोशन कैसे करेंगे, फिजिकली वो किस तरह, किसको बेचा जाएगा, एंड कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे इन डिटेल। ओके, अगेन इट्स जस्ट वन वर्ड, मार्केटिंग, बट इट इन्वॉल्व्स इन इट टाइप्स ऑफ मार्केट्स। ओके, किस मार्केट में किस तरह का व्यवहार, ओके, हाउ डज अ कंपनी सपोज टू बी रिएक्टिंग, बिकॉज एवरी मार्केट इज नॉट द सेम। ओके, वी द डिफरेंट कंट्रीज, द पीपल आर डिफरेंट। जो प्रोडक्ट वहाँ पे बिकता है, वो प्रोडक्ट या मार्केट में मे बी नहीं बिक पाएगा। सो यू विल लर्न ऑल ऑफ दिस, एंड दिस इज व्हाट मेक्स योर 8 चैप्टर्स। वेरी क्विकली, आप में से कुछ लोगों का सवाल, सर इम्पोर्टेंट क्या है बता दो ना। देख लो भाई, सो अबाउ मी इफ़ यू नोटिस, द मोस्ट तगड़ा चैप्टर इज़ बिजनेस सर्विसेज, क्योंकि वो 20 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है। इनफैक्ट वो 27 मार्क्स तक का आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दी 80 मार्क्स। ओके, सो 20 मार्क्स। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन अगर आपको दिखेगा, राइट डाउन, मार्केटिंग, 15 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है। एंड देन अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 12 मार्क्स। एंड देन द रिमेनिंग इज 5 मार्क्स बटा हुआ है। सो इट इज़ दीज चैप्टर्स जहाँ पे आपका फोकस
थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, where the big answers. Now hold on, what do I mean by the big answers here? Now this is the format. You can take a screenshot. I'll do my best to share the PDF with you of this. So you get objectives, 5 marks, 5 marks, 5 marks, उससे आपका 20 marks बन जाता है. Then question 2 to 4 are little long answers. So you can have explained the following terms, concepts, and there are so many because out in 8 chapters इतने ज़्यादा variety है. Study the following case. So it is like an English comprehension where you will be given a particular case study कहा जाता है, and then you have got to read. अच्छा, ये कंपनी ने ये सिचुएशन फेस किया, उसका इलाज उन्होंने इस तरह किया, एंड उसके ऊपर आपका ओपिनियन अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से पूछा जाएगा. देन डिस्टिंग्विश बिटवीन है, आंसर इन ब्रीफ है. एट द वेरी एंड you have a big answer. Okay, so 7 and 8 आप बोल सकते हो 7 and 8 ये long answers है. Okay, and that 7 and 8 makes up to around 18 marks. So I repeat, long answers you can expect it to come from the more important chapters. Okay, nevertheless I will try my best to explain all of the chapters to you so that at least simple wordings में आपको ये सारे explanations याद रहेगी. Okay, for today I will bring this introductory lecture of a subject called as Organization of Commerce and Management to an end, and जाते जाते याद दिला देता हूँ, if you understood the entire lecture prior to this कि भाई क्या है, किस तरह करना है, planning करना है, and planning is something that you will be studying in this particular subject. Okay, if the explanation was understood to you, please do like the video, subscribe, press the bell icon, share the lecture videos with everyone so that everybody or the maximum people do come to know that on this platform on YouTube what are we trying to achieve, trying to help out as many students as possible. Okay, तो इतना ही रखते हैं. अगर आपके कोई कमेंट्स है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स का उपयोग कर लीजिए. we'll do our best to read it, and then if there is a suggestion, if there is a rectification, okay, if there is an improvement technique or maybe a requirement, there can be so many things that you can put in the comment box connected to this subject and this chapter. Okay, so relevant रखना, दूसरा कोई comment मत डाल देना. Okay, we will do our best to go through it and to accordingly improvise the upcoming lectures. Till the time we meet again, take care of yourself, take care of your seniors and juniors, take care of your lovely family members. Okay, अपना ख्याल रखना. Have a wonderful day ahead. Good day to all of you. God bless. Bye.